Good morning to one and all present here. On behalf of the entire Geeta Ratan family, I welcome our chief guest, Ms. Kavita Singh Nam, who is a very renowned teacher of political science. Having experience of more than 18 years in the teaching profession, she has done BEd and Masters in Political Science. She is working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. She is here to guide us on a very crucial and important topic, preparation of timetable and academic calendar. We are grateful to her for accepting our invitation and sharing her knowledge with us. We welcome you, ma'am. Good morning, everyone. First of all, I hope the lecture would not be so boring that you people need to go at the back. Okay, I've been called here. ठीक है? अब आ जाते हैं इसमें. So first of all is preparation of timetable and academic calendar. So these are two things. Fine. So first of all, mark my words. If you teach only in your teaching profession, no one will knows who you are, and no one will love you, and no one will give attention to you, because that is the work which you are doing, which you are appointed for. वही तो कर रहे हो. What extra you are giving? Nothing. But if something extra you will learn from this and you will execute in your life, you will become favorite. In your school life also, some teachers are favorite of principal. Why so? उसके घर से थोड़ी भी नहीं है वो, because she is doing something extra, isn't it? उसने भीड़ में से अपने अलग जगह बनाई है, चाहे कुछ भी करके बनाई है, बट बनाई है. और one more thing, बटरिंग ज्यादा दिन नहीं चलती, थोड़े दिन चल सकती है. अदरवाइज द रियल थिंग इज योर कोर, योर हार्ड वर्क, योर टैलेंट, योर स्किल्स. Now it's up to you how many skills you people are going to have. First thing is timetable. This is the most important part of your teaching. Now, before framing the timetable, what all important things you should have into your mind? First thing is this: difficulty level of your subjects. If you would have maths period, the last period, would you able to understand? सुनोगे ही नहीं आप, समझना तो बात की दूर है. So first of all, whenever you people are framing the timetable of yours, you have to think whatever the difficult subjects would be there, they should be placed into the first half of the timetable, means before recess. Fine. Or it can be, or suppose आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो उसको फर्स्ट हाफ में, what you can do is बेटा, the very first period after lunch, खाना खाया होता है, नींद आती है, ठीक है, ना भी नींद आए, the energy level is high, and if that energy level would not be used into studies, then it would be channelized anything in anything else, and it would be difficult for you people to handle the whole class, isn't it? So mark my words, all the difficult subjects, either they should be placed in the very first periods of the first half, second last, third last. I'm not that boring, beta. Are you feeling nice? Are you well? I'm talking to that. Huh? Are you fine? Okay. So I think I'm not that boring. कि one needs to just close the eyes and should think over it कि मैम कब जाएंगे और कब हम यहाँ से हिलें. Because I used to see your lectures, I used to see you people. ऐसा लगता है जैसे ही आप लॉकडाउन के बाद आएंगे, बेचारे बच्चों को 4 बजे तक बांध के हमने बिठा लिया है. एंड जैसे ही 4 बजे दे वुड रश आउट टू द गेट कि बस कैद से मुक्त हुए. Isn't it? So first thing is this: the most difficult subjects, they should be placed in the very first half. And another thing, if we are having second option, then we can place it the very first period after the recess time. Second classes, as second time is कि it should not be like that कि पहले मैथ्स का पीरियड लग दिया फिर साइंस का रख दिया. No, two difficult subjects should not be placed all together. There should be gap between them. ठीक है. Two
language subjects should not be placed together. Means English और हिंदी, they should not be placed together. हमें fillers की तरह use करना है इन subjects को. Why? Because I think language is the most amazing and can be the most refreshing subject as well. अगर कोई लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट को बोरिंग लेता है तो इट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट इनटू द स्टूडेंट, द प्रॉब्लम इज इनटू द टीचर. Because if I remember my language teachers, they were amazing. They were amazing. हमारा फर्स्ट पीरियड इधर मैथ्स होता था और साइंस होता था, और उसके बाद यूजुअली वी आर हैविंग वन लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड दैट वाज द मोस्ट रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट. Because whether we are studying literature topics or grammar topics or whatever, prose, poetry, whatever we were studying, टीचर हमें बिल्कुल वहीं पहुंचा देती थी एज ए वी आर वॉचिंग इट. वी आर नॉट स्टडिंग और वी आर नॉट हियरिंग, वी आर वॉचिंग दैट थिंग. सो दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी देयर इन द लैंग्वेज टीचर्स. Many of you are having your pedagogy subject English, mostly are having one pedagogy subject as language. Okay, तो ये चीज ध्यान रखना. Third thing is this: what is the positioning of curricular, co-curricular activities subjects, sports हुआ, डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, ये आप कोशिश कहाँ रखेंगे कि after every 2 academic subjects you should place one co-curricular subject. Music, डांस, स्पोर्ट्स, 3 तो सब स्कूल में होते हैं, उसके बाद भी होते हैं, बट वी आर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये 4 तो हर स्कूल में होते हैं. ठीक है. सो यू आर हैविंग 4 फिलर्स विद यू. तो इन 4 फिलर्स को आपको इस तरह से यूज करना है बेटा, सो दैट योर टाइम टेबल वुड बी द बेस्ट वन. एंड हु विल प्रूव इट दैट इट वुड बी द बेस्ट वन और द वर्स्ट वन? Students. If you visit in a class in the last period and if the students are still energetic, it means your timetable is fine. But if any flaw is there into your timetable, then naturally it would be the most difficult task for teachers. How come? I'll tell you a real instance into it. I met one friend of mine. She used to teach maths. Unmarried थी, आप ही जैसी की एज की. So she used to tell me कि रविता मैम, it has become very difficult for me to pursue my career. मैंने कहा why इसको? 5 साल हो गए यार, तुझे ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम कि you want to quit from here? कि यार मेरे तो बच्चे नहीं संभल में आते मुझसे. 9th क्लास को वो मैथ्स पढ़ाती थी एंड वो बता रही थी मैम वो बच्चा ऐसे, वो बच्चा ऐसे, वो बच्चा ऐसे. मैंने कहा माई फर्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ टीचर दैट गर्ल इज. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड वाज कौन सा पीरियड लेती है तू? कहती है लास्ट. कब? बस फिर मैम को गो टू योर कोऑर्डिनेटर एंड जस्ट आस्क कि मैम प्लीज शिफ्ट माय टाइम टेबल. और मैं कह रही बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. मैंने कहा हाँ. तो मैंने कहा तुम एक काम करना, टुमारो यू गो. मैंने कहा जो तुम्हारा खड़ूसा बिहेवियर है पहले तो नॉर्मल, इसको नॉर्मल करना. बच्चों को जाके मैंने कहा जो तुम शाउट करती हो 5-7 मिनट जाके उनको चुप करने में ये सब काम करना, और उनको ये बोलना कि बेटा टुडे वी विल हैव अ वर्ड ओनली विद यू, वी विल टॉक, वी विल नॉट स्टडी. एंड देन आफ्टर 5 to 10 minutes just ask कि why they are doing mischievous things in your period, why they want to bunk your period, why they are irritating you a lot. मैंने कहा वो बच्चे आई हैव सीन ऑल्सो देम, ऐसे नहीं है वो. तो मैंने कहा तुम ये काम करके देखना. नेक्स्ट डे शी वेंट टू स्कूल, शी डिड द सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड हर, एंड द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स सेड दिस कि मैम हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन लास्ट पीरियड तक आते आते ना हम बिल्कुल ना, हमारा दिमाग मैथ्स पढ़ने का तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं रहता, और आप पढ़ाई भी ना मानोगे नहीं, इसीलिए हम आपस में लड़ते हैं. आपका जो अटेंशन है वो क्रॉस आउट करते हैं ताकि आप हमें डांटने में, हमारी नोटबुक पूरी कराने में इसी में लगे रहो और आप पढ़ाओ ना. दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन विच आई एम शेयरिंग विद यू पीपल. फाइन. एंड इफ सपोज द प्रॉब्लम कैन नॉट सॉर्ट आउट विद द टाइम टेबल, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने कोऑर्डिनेटर के पास जाएगी और विद इन अ डे इट वुड बी चेंज आउट, ऐसा तो नहीं होगा. सो फॉर इन दैट वेरी पर्टिकुलर केस व्हाट यू सपोज टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल you should maintain a rapport with your students, because without forming a rapport with the students you cannot play with their mind.
एंड वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड प्ले, क्योंकि खेल खेल में ही आप कुछ कर सकते हो. देखो अथॉरिटेटिवली तो इवन आई कैन नॉट मेक यू डू एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल. मैं भी नहीं करा सकती, कोई भी नहीं करा सकता. नॉट इवन इन स्कूल, नॉट मतलब हम घर में भी नहीं करा सकते. वी आर हैविंग वन और टू किड्स, हम उनसे भी चाहे ना अपनी मनमर्जी का करा लें अथॉरिटेटिव होके, वी कैन नॉट डू. द टाइम हैज पास्ट. वो हमारे वाली जनरेशन नहीं है कि मम्मी पापा ने एक बार बोल दिया हाँ भैया वैसे ही है, रीजन नहीं. ऐसे ही होता था ना, मम्मा ने बोल दिया चौखट पे बैठ के नहीं खाना, नहीं खाया. अब हम अपने बच्चों को बोलेंगे वाई मम्मा. अब वो रीजन हमें कैसे पता होगा, क्योंकि हमने तो नहीं पूछा था ना, वो गैप आ गया ना. तो उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी पीपल यूज टू लिसन. आप दोनों बड़ी ट्रेडिशनल हो, बड़ी कंजर्वेटिव हो. जब आपके पास वाई का रीजन है तो मम्मा मत ही बोला करो आप. फिर नाउ व्हाट इज हैपनिंग, गॉड फॉरबिड, मतलब भगवान के लिए मेरे पेरेंट्स अभी हैं तो आई यूज टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग, मम्मा आपने ये, मम्मी आपने ऐसे क्यों मना किया था, उसके पीछे रीजन क्या होता है. बिकॉज आई हैव टू गिव इट टू माई किड्स, अदरवाइज दे वुड नॉट अग्री जो भी मैं बोलूंगी. बीइंग अ गर्ल्स ये हमारा बहुत ही कॉमन सा इशू होता है. पीरियड्स होते हैं तो मंदिर नहीं जाना. क्यों नहीं जाना, भगवान के तो बच्चे हैं, क्यों नहीं जाना मंदिर में. हम ये सभी बोलते हैं, वो हल्ले हो जाते हैं कि कोर्ट केसेस हो जाते हैं किसी चीज के पीछे. वो भी वो हुआ था ना, वो शनि महाराज जी का कौन सा मंदिर था, कौन सी माला वाला था, हुआ था ये सबरी माला वाला, हुआ था ये केस. बहुत दिनों तक वो आफत बनी रही भाई. साइंटिफिक रीजन अब आ गए, अब हम सब शांत हैं. अब वो साइंटिफिक रीजन आई शुड शेयर इट विद यू ओनली बिकॉज वी ऑल आर फीमेल, वी कैन शेयर इट. I'm not talking about temples. If we are going to church, if we are going to gurdwaras, mosques, कहीं पर भी हम जाते हैं तो we people have seen a dome. बहुत ही ऊंचा होता है और एक डोम बिल्डिंग होती है, ऊंची उठी हुई, जितने हमारे घर होते हैं उससे ऊंची होती है. ठीक है, हम अपने घर में भी तो जाते हैं, हमारे घर में भी तो मंदिर होता है, तो वही घर में आना तो नहीं रोकते ना. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. यू शुड हैव अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट. तो जो भी वो बिल्डिंग्स होती हैं बेटा, वो बहुत ऊंची होती हैं. ठीक है, और ये तो आप लोग भी मानते हैं कि इफ यू आर विजिटिंग टू टेम्पल्स और एनी रिलीजियस प्लेस, आप वहां जाओ और चढ़ावा बढ़ावा पैसे वैसे सब हटा दो. आप अगर वहां पर जाके आंख बंद करके इफ यू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स ओनली, you'll get a relief from inside. What is the reason behind it? कभी सोचा है? पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, सारे पॉजिटिव लोग ही जाएंगे, चोर उचक्के तो बहुत कम ही जाते हैं वहाँ पर. सारे तो वहाँ पर एक ऑरा वो होता है. और जो दूसरी चीज होती है, बिकॉज बेटा वहाँ पर क्योंकि प्योर सोल्स ही ज्यादा जाते हैं, वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है वाइब्रेशंस का. एंड जो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है और जो पॉजिटिविटी हम सबकी तरफ से वहां गई होती है. अब कोई वहां जाके ये तो प्रे नहीं करेगा ना भगवान वो मर जाए मेरे हाथों से, ये तो नहीं प्रे करेगा. कुछ हम अच्छी प्रे करते हैं, अपने लिए मांगते हैं, कुछ भी अच्छा ही वहां पर हम जाते हैं. एटलीस्ट भगवान जी के सामने तो हम अच्छा ही करते हैं. बाकी हम बाहर आके जैसे भी हैं बट हम वहां अच्छा ही करते हैं. ठीक है, तो वहां क्या होता है बेटा, पॉजिटिविटी की जो रेशो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कनेक्ट होते हैं टुवर्ड्स गॉड. तो वहां का जो फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ होता है. आत्मा जो होती है वो थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑरा व्हिच इज देयर अराउंड यू. दिस इज नॉट टोल्ड बाय मी, अब ये साइंटिस्ट ने बोल दिया. जब हमें पीरियड्स होते हैं तो फ्लो कहाँ का होता है, हम वहां जाएंगे, वो कहाँ जाएगा, वो जो फ्लो जाएगा वो ऊपर जाएगा. प्रॉब्लम्स होंगी हमें, बीमारियां लगेंगी. आप करो ये प्रैक्टिस रोज, जाओ हर बार पीरियड्स में 3-4 मंदिर देखो. आप 3-4 साल में ना आपको कोई ऐसी मतलब अननोन सी ऐसी चीज आपकी बॉडी में आ जाएगी विच इज नॉट रेगुलर विद एवरीवन. रीजन मीन क्योंकि फ्लो जो नीचे जाना चाहिए था वो नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर आ रहा है. सो दिस इज द एक्चुअल रीजन. अब मैंने भी आई टोल्ड इट टू माय डॉटर, नाउ शी इज टोल्ड. सो at least if your parents are saying something, no, ask reason, because your future generation वो तो आपकी भी 10 गुना ज्यादा होने वाली है. तब आपको चीजें समझ में आएंगी, यार मम्मी ठीक कहती थी, काश हम उनकी बात मान लेते. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू नो रीजन फ्रॉम एवरीवन. आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज इसके पीछे साइंस होता है. आपसे ये बोला जाता है, हमसे बोला जाता था, मुझे नहीं पता, अब तो शायद आपके पेरेंट्स ने बोलना भी मना कर दिया होगा कि वी शुड नॉट स्टडी ड्यूरिंग द संध्या टाइम, जब डे और नाइट में होता है, ऐसा बोला जाता था. अब
क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? पढ़ी तो रहे भाई, कॉन्टिन्यूटी टूटती है भाई। उस टाइम के लिए जस्ट नॉट फॉर मोर देन 5 to 10 मिनट्स, आप सिर्फ अगर 2 मिनट भी जो भी आप कुछ कर रहे हो, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट डू वर्शिप ऑफ वट एवर, आंख बंद कर लो वहीं पर ही, मेडिटेट फॉर 1 or 2 मिनट्स, देन यू कंटिन्यू योगा। द रीजन बी कि जब दिन होता है और रात आती है तो वो वाला जो कल्मिनेशन वाला जो टाइम होता है, अब आप एकदम से इसे ऐसे समझो कि इस कमरे में अभी लाइट्स ऑन है, ऑफ कर दी, देखो आँख खोल के देखो, आंखों पे प्रेशर आएगा, आएगा ना? क्यों? क्योंकि अगर हम साइंटिफिक देखें जी कॉर्निया एक्सपैंड होता है जी, ये होता है वो होता है, उसमें इसलिए पेन होता है, यही साइंटिफिक रीजन है। हम समझ में आता तो दिस हैपेंस विद अ डेली लाइफ एज वेल। तब भी तो यही हो रहा है, नेचुरल लाइट बंद हो रही है, हम आर्टिफिशियल लाइट ऑन करने वाले, तो 2 मिनट का ब्रेक तो चाहिए हमारे माइंड को, हमारी सोल को, हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी क्लॉक ही ऐसे बनी हुई है, इजंट इट? तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान आपको रखना है व्हेन यू पीपल आर फ्रेमिंग योर टाइम टेबल। बच्चे की माइंड की मेंटालिटी से आपको खेलना है, और उसके लिए द वेरी बेसिक थिंग इज द डिजाइनिंग ऑफ द टाइम टेबल। फाइन, उसमें आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पीरियड डालना है, उसमें आपको म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, ये सारे पीरियड्स डालने हैं, और वो इस तरह से डालने सो दैट इट शुड बी अ बैलेंस टाइम टेबल। फाइन, आई थिंक नाउ यू पीपल कैन डू इट। और डरना नहीं है किसी भी चीज से, कोई ये बोले कि मेरे पीरियड ज्यादा लगा दिए, मेरे पीरियड कम लगा दिए, नेचुरली all 5 subjects would be having more quantity, more number of periods as compared to the co-curricular activities। वो हमें सिर्फ रिफ्रेशिंग के लिए डालने हैं बच्चे के लिए, वो इसलिए नहीं डालना है कि भाई आपको अपनी फ्रेंड्स के टाइम टेबल में पीरियड्स कम डालने हैं और आपको ये वाले पीरियड आप भर दो और मैनेज कर दो, नहीं। डोंट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ योर किड्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एकेडमिक कैलेंडर। If you are going in a public school, government school में तो सब कुछ पीछे से आता है and you people just need to follow it. But if you are there in a public school, this is even more important than your daily timetable. क्यों? क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर ये पूरा अप्रैल से अगले मार्च तक चलता है, पूरा साल की इसमें एक्टिविटीज प्लान आउट होती है। अब ये हम कैसे करते हैं? इसमें वन थिंग इज दिस, वी पीपल विल सी व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। जो बेस्ट बेस्ट स्कूल्स है उनके ले लो, कॉपी का आउट करके और जस्ट पेस्ट कर दो। दिस शुड नॉट बी द वे। नाउ हाउ यू पीपल नीड टू फ्रेम इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट टास्क विच आई यूज टू डू, जो मैं भी करती हूँ, पूरे साल के जितने भी महीने हैं उनमें कुछ कुछ स्पेशल होता है, इंटरनेशनल डेज होते हैं, वो लिख लो। यहीं से निकलेंगी हमारी एक्टिविटीज। इंटरनेशनल डेज लिख लिए, फिर हमने इंडियन फेस्टिवल्स, पूरे, मैं इंडियन फेस्टिवल्स की बात कर रही हूँ, इंडिया इज अ बुके ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे के सारे हमने इंडियन फेस्टिवल्स लिख लिए। देन इंटरनेशनल में विच आर द कॉमन वंस, दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ वन इज who all are having birthdays, the famous personalities birthdays, this is the next thing. Next thing is this, major achievements achieved in a particular month। आइंस्टाइन ने कब किया था बल्ब, या फिर यूरेनियम कब आया था, कौन से महीने में इसके जो कॉपीराइट्स थे वो स्टैब्लिश हुए थे फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर थिंग्स वो लिख लिए। फाइन, आफ्टर दैट कुछ ऐसी चीजें बचेंगी, जैसे कि मैंने, आपका टॉपिक कुछ और था बट आई केप्ट माय थिंग इनटू इट। मैं सोच के आई थी, मैंने कहा चाहे मेरा लेक्चर थोड़ा सा फालतू हो जाए बट ये तो मैं जरूर लूंगी, और पहले लूंगी, बाद में नहीं लूंगी। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी विच ऑल्सो यूज टू बी डन बाय यू पीपल, योर क्रिएटिविटी। कुछ तो ऐसा होता है, कुछ का होता है कि भैया एकेडमिक्स में कुछ आगे जाए, और कुछ का होता है कि भाई ऐसा नहीं है एकेडमिक तो पूरा टाइम नहीं चलता रहता, समथिंग फन एंड फ्रॉलिक एक्टिविटी शुड बी देयर। ये वाला काम, अपना वाला, माई सेल्फ, माई कॉर्नर। नेक्स्ट इज मेजर इवेंट्स ऑफ द स्कूल। दे कैन बी योर एनुअल डेज, they can be your sports days, they can be exhibitions, ye major events of the school। And last part is the events, the weeks which should be celebrated by you people। maths week, science week, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके वीक लगाओ,
In that week, you people will have activities of that particular arena only. तो देखो 8 7 8 headings आपके पास हो गई होंगी. So it means the raw material is with you. Now let's design it into the curriculum. इसमें से कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज होंगी, कुछ हेक्टिक होंगी, कुछ में थॉट प्रोसेस कुछ ज़्यादा लगेगा. जिनमें भी थॉट प्रोसेस ज़्यादा लगेगा, मार्क माय वर्ड्स, वो आपको प्लेस करनी जब एग्जाम्स खत्म होके हटे हैं. अभी स्टूडेंट्स आर रिलैक्स्ड, लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ द मार्च मोस्टली सब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं. दे आर फ्री, देयर माइंड इज फ्री, नाउ दे कैन डू इट. तो उनको जितनी भी टफेस्ट एक्टिविटीज हैं इंक्लूडेड देयर. एग्जाम्स आने से जस्ट पहले, बिकॉज नाउ डेज एज वी पीपल आर हैविंग कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, तो पूरा सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं. 2 बारी पी होते हैं, 2 बारी ऐसे होते हैं, चल रहे होते हैं. एग्जाम से जस्ट पहले keep some fun and frolic activities, because students are having lots of pressure into their minds at that very particular time. They are having lots of revision test also, क्लास में भी सुन रहे हैं, घर में ट्यूशन में भी मम्मा भी बोल रही हैं. उस टाइम बहुत प्रेशर होता है बच्चे पे. उस टाइम आपको ऐसी एक्टिविटीज रखनी है जिससे बच्चा खुश हो जाए, उसको लगे हाँ यार उसकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो, आपको बहुत सारी चीजें. एंड बीइंग अ टीचर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make this thing understand to the parents also and to the students also कि fine enough विद्यार्थी जीवन पढ़ने के लिए ही होता है, but it is not like this कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही होता है. Why? Because if you people will not provide them the surrounding areas, the other activities, in future they'll be into this platform only. They cannot choose sports as a career. They can not be great engineers. आप घर में जब तक उन्हें खोला बांधी तोड़ा बांधी नहीं करने दोगे बच्चों को, उनका दिमाग ही आप वही बाउंड करके रखोगे पढ़ाई में, वो कुछ करेंगे ही नहीं जिंदगी में. मार्क माय वर्ड्स, डू नॉट ऑलवेज इंस्ट्रक्ट योर किड्स एंड डोंट वांट कि जैसे आप बोलोगे वो वैसे ही करेंगे. हैव योर ओपन विजन, उनके भी पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करो. फाइन. एंड द एक्टिविटीज विच यू पीपल आर गोइंग टू प्लान, ऑलवेज वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि सर्फ नेट, फाइंड दिस कंटेंट, मेक दिस पेपर पेन प्रोजेक्ट, पेस्ट दीज पिक्चर्स. नो, दिस इज गॉन एरिया. अब ये सब चीजें पसंद नहीं है. यू हैव टू इंक्लूड द एक्टिविटीज इन टू योर एकेडमिक कैलेंडर इन विच they are fascinated. You will give them the freedom to find something new. Fine. And whatever the students have done, कुछ भी उन्होंने किया है, you should devote particular time to each and every student कि वो कहना क्या चाह रहा है उस एक्टिविटी के थ्रू. What is there into her or his mind? क्या पता वो कोई ऐसी चीज लेके आ रहा है which is not into our mind. जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं तो उसको आप फोस्टर कैसे करोगे. इट्स नॉट लाइक दिस कि एक एक्टिविटी हुई आई, ठीक है जी हो गया, असेस हो गया, आपने उसके मार्क्स लगा दिए, रिकॉर्ड कर लिए, दैट्स इट. नो, what your ultimate aim is कि through these activities you have to give an exercise to the mental powers of a student. आपको ऐसी ऑर्गेनाइज करनी है. जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एग्जाम्स वर अबाउट टू देयर, अभी पिछले सेशन की बात है. तो अब एकदम से आया कि अरे एक इंटरनेशनल डे जो था वो हमें कराना था और हमारे माइंड से स्किप हो गया. बच्चों को हमने बताया ही नहीं, भूल गए एग्जाम्स के चक्कर में. अब वो जैसे आज बताया है और कल है, ठीक है, अब इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है, क्या करें इतनी जल्दी बच्चे कैसे करेंगे. सो व्हाट आई सजेस्टेड कि मैम गिव अ डे टू द स्टूडेंट, वॉट एवर दे वॉन्ट they can perform, whatever means whatever. Okay, they can bring their instruments, they can bring their own things and they can perform on the stage. We'll give them 5 to 7 minutes to a particular child. Let's see 5-7 आ जाएंगे तो at least हमारा डे हो जाएगा and we should have pics and all that to post it on that. We are having this thing into our imagination. half day था, मैंने कहा फिर ये वैसे भी इन्हें अब घर चले जाना ना, ठीक है. सिर्फ आज मैसेज फ्लोट हुआ, no diary note was given, nothing was given. Only in the very last period teacher announced it
in the class, then tomorrow 5 to 7 minutes would be given to you people. Whatever you want to perform, just perform it on the stage during the assembly only in the morning itself. ठीक है जी? You people cannot imagine that जो हम 5 से 7 एंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये बोल रहे थे हाँ कोई डांस कर देगा, कोई डांस तो बहुत ही ज्यादा वाली बात है, कोई पोइम सुना देगा, कोई ऐसे से ये इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे ना. बट यू कैन नॉट इमेजिन, वी हैव गिवन ओनली वन चांस and whatever they did, I have seen beat boxing for the very first time directly. नहीं तो हम उसमें देखते थे, YouTube में देख रहे. And what amazing beat boxing they did कि अगर मैं उसको नहीं देखूं तो मैं मानूंगी नहीं कि ये मुंह से आवाज निकाली जा रही है. Many of them were सितार players. सितार कभी हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है सितार? नहीं देखते हम, but they are learning. एंड अमेजिंग गिटार प्लेयरिस्ट, ओ माय गॉड, केसियो जो उनका वो बड़ा वाला केसियो होता है उससे, दे आर सो अमेजिंग इनटू इट. दे हैव परफॉर्म्ड अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ ऑल. कैसे उन्होंने लिखा होगा, कैसे प्रिपेयर हो गए, इंस्टेंट हास्य कवि सम्मेलन, इंस्टेंट मीन्स द थिंग्स विच वी पीपल कैन नॉट थिंक इवन कि अगर सपोज करिए हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, वी एक्सपेक्ट 5 to 7 days मिनिमम टू प्रिपेयर सच एन इवेंट. But they did it on their own. और इतना ही नहीं, one anchor was also there. सोचो उन्होंने कैसे किया होगा एक दिन के अंदर ये काम. One anchor was also there and he jot down all the names, and one boy and one girl was there, and it was like it was a synchronized program. तो the thing is हम उन्हें चांस ही नहीं देते ना. पहले क्या होता था, हम ही एंकर सेलेक्ट करते थे, हम ही उन्हें लाइंस लिख के दे रहे होते थे, फिर उनसे लर्न कराते थे, फिर सुनते थे, देन दे नीड टू परफॉर्म, फिर रिहर्सल्स होती थी, फिर ड्रेस रिहर्सल होती थी, उसके बाद परफॉर्मेंस होती थी. बट दे डिड इट लाइक दिस. और जो फ्लॉज भी हो रहे थे वो उन्होंने ऐसे हंसी मजाक में ऐसे कवर अप कर लिए कि जैसे वो थे ही नहीं. बट हमें तो पता था ना कि वो क्या प्रॉब्लम है. बट स्टूडेंट्स एंजॉयड इट. जो बैठे थे उन्होंने भी और जो कर रहे थे उन्होंने भी. So whenever you people are going to plan your academic year, please give some space to your kids also, ताकि वो भी अपना दिमाग चला. They can also do whatever they want. उन्हें लगना चाहिए this is their academic year. This is not our teachers' community academic year. Usually होता तो यही है, हम जो चाहते हैं वही कराते हैं. यहाँ पर भी मैम जो चाहती हैं वही करते होंगे आप बच्चे. Exactly. Yes. But sometimes देखो, I am accepting it honestly on behalf of ma'am also, because we are also instructed it from above, na? Yes. From our seniors, we are also instructed to do so, and you people can say no. We people cannot say no. Okay. Importantly, ma'am, they will go into the school, na, then their situation. Exactly. When you would be the teachers, na, then you people would understand how difficult it is to come into a teacher's shoes. अभी तो आप देख रहे हो मैडम, पता तो जब चलेगा जब you will become ma'am. अभी आप मैडम हो, then you would become ma'am, then you would realize all the things. Means sometime it is happening, we are having lots of pressure, work pressure into our mind, and we are forced to have lectures. Naturally we are having it into our timetable. बच्चे कह रहे हैं मैम आपने ये तो कराया नहीं, मैम आपने ऐसे नहीं कराया, मैम आपने वैसे नहीं कराया, मैम आज पढ़ना नहीं है, मैम ये नहीं है, मैम वो नहीं है. You people can say, but we people even cannot say. ये हमारी जनरेशन लगा लो या जो मर्जी लगा लो. We don't have choice. We don't have choice. We cannot say to our parents also. We cannot say to our kids also. Actually, this happens. आप एक चीज बोलो, वहां से 10 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फिर ऐसा लगता है यार बोलो ही मत. Actually it happens. Actually. अब आप बोलोगे मैम फॉल्ट पे तो आप ही हो, because I used to be a authoritative mother. I have 2 kids, my daughter and my son. Both are having 8 years of gap. तो my daughter is in college right now. तो अब वो कहती है मम्मा आपने मुझे तो ऐसे नहीं बोला था जैसे आप कृष्णा को लूज छोड़ देते हो, उसको तो आप कुछ नहीं कहते हो, मेरे टाइम पे तो आप इतने स्ट्रिक्ट होते थे. अरे एट दैट टाइम आई वाज फ्रेश मॉम. एग्जैक्टली. तब हमें लगता था कि बस हम टीचर हैं तो हमारा बच्चा भी बेस्ट होना चाहिए, ये वो, मतलब जितनी भी एस्पिरेशंस होती है, जितने भी हमारे दिमाग में एक्सपेरिमेंट्स और एनर्जी होती है, वो सब पहले बच्चे पे जाती है. दूसरे तक आते आते कुछ हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट,
अगर सेकंड बेबी बॉय है तो वो वैसे ही आपकी नहीं सुनता, वैसे नहीं सुनता। तो आपको लगता है कि एनर्जी पहले ही कम है, यार बोलो ही मत, वैसे वो सामने वाले ने करना नहीं तो आप उसको बचाओ, तो ये देख के पहले वाले को आग लग। Actually it happens. Those who are having two babies, na, they are having this problem into their home, and we are dealing with dilemma on daily basis, on daily 24/7. Fine, so please understand this thing into your homes also. Fine, it happens with your seniors and juniors as well. जो हमसे बच्चे पढ़ के चले गए, मैम आजकल तो आप बड़ा रिलैक्स होते हो, आजकल तो आप बच्चों को बड़ा फ्री मैंने सुना छोड़ देते हो। अरे आपका जमाना 15 साल पहले मुझसे पढ़ के गए थे, एंड द जनरेशन विच इज नाउ वी कैन नॉट बी सो अथॉरिटेटिव विद देम। तब तो मैं 2 भी देती थी बच्चों को, अब आप हाथ लगा के देखो। When my first session was in 2003, तो आप सोचो 2003 and now it is what 2020. तो how can I expect the same kids which I taught in 2003? उस टाइम तो आती ही अगर आवाज हो रही है क्लास में, लंच के बाद मेरा 5th पीरियड होता था, आई सपोज टू गिव 2 to 3 slaps to 2 or 3 देम, उसके बाद क्लास ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। फिर बच्चों को पता चल गया कि इससे पहले 2-3 लग के शांत हो पहले ही। बट वी कैन नॉट डू इट नाउ, द टाइम हैज चेंज्ड। फाइन, तो ऐसे से चेंजेस आपको भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अभी आप जितना टॉर्चर अपने पेरेंट्स को करना है, अपने टीचर्स को करना है, यू आर फ्री टू डू, बट आई एम डैम श्योर व्हेन यू विल बी इनटू योर करियर्स देन यू वुड रियलाइज आवर पोजीशन, हाउ पिटी वी पीपल आर। Actually, these previous years batches used to come, some students used to come for some kind of work, and then they used to tell us, "Ma'am, seriously, you are too good. You have given us so liberty, and right now we are in a situation we can Exactly. see how you have been and what kind of work you have all have done." Exactly, That's our exactly. self-realization. एग्जैक्टली वो आपको पता चलेगा बेटा, बट व्हेनेवर यू आर हैविंग सैलरीज ना, तो वो सैलरी पॉकेट में जाती तो है, बट उसके बाद वो माइंड में कितना प्रेशर लाती है, दैट यू पीपल वुड रियलाइज लेटर, मे बी 1 or 2 years later. But keep one thing into your mind, this is the profession which you chose, no one forced you to do so. I am here of my choice. No one forced me to do here. If I am feeling so stressed, I should sit at home. But I am not. अपनी frustration आप पे नहीं निकालूंगी. This is my choice. This is my option. So you all should love your profession first. Once you love your profession, naturally it would come onto your faces. वो आता है. Even though I was told day before yesterday only, Ravita ma'am, you are having one lecture. I was like, on 5th, and means tomorrow I'm having so many deadlines. Fine, but because I love to talk to you, I came here. Second approach is, मैम प्लीज लेट कर लो, मैम बाद में कर लो, मैम अगर अवॉइड हो सकता है तो वो कर लो, मेरे पास बहुत काम है। 2 options are there. काम तो सबके ही पास है ना। If I have been chosen, it means first of all I should feel proud of myself that among so many teachers, so many options, I've been chosen here. It means administration must have seen or observed something in me that I can influence you people. And why these FDPs or why these seminars or extended lectures are arranged, so that we people can influence your mentality. That too in a positive manner. बिकॉज नेगेटिविटी में तो इन्फ्लुएंस 2 मिनट में हो जाओगे। अभी एक पोस्ट कर दूं मैं इंस्टा पे और उस पे सब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे एकदम से। नेगेटिव तो ऐसे में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस करने के लिए इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। फर्स्ट ईयर के लिए था, बच्चे काम थे तो सेकंड ईयर भी आ गया, है ना। अगर जो अभी मैं बोलती ना, यहाँ पर एक पिकनिक अरेंज हो रहा है, यहाँ पर एक आउटिंग हो रही है, तो अभी देखते तुम फर्स्ट ईयर के भी सारे बच्चे घर से उठ के आते हैं। फाइन, तो मेक योर टीचिंग लाइक दिस दैट योर स्टूडेंट्स वुड एंजॉय द सेशंस, वेदर यू आर टीचिंग सोशल साइंस, और भगवान के लिए सोशल साइंस के लिए तो जस्टिस करना। एक्चुअली आई एम फेड अप नाउअडेज, कैसे से बच्चे आ रहे हैं भाई। सबसे पहले, और एक वन मोर थिंग, दोज हु आर फ्रॉम सोशल साइंस बैकग्राउंड, हमारे टाइम पे पढ़ाई करना इट वाज वेरी टफ। आप सोच के देखिए, जो एनसीईआरटीज में नहीं है, आई वांट टू स्टडी अबाउट सुभाष चंद्र बोस, तो कहाँ से पढ़ती?
तो उसके लिए लाइब्रेरी जाते थे, फिर बुक सर्च करते थे, बुक्स भी बहुत कम होती थी, फिर उसमें से जो हमारा रेलेवेंसी का मैटर था वो बहुत कम होता था. एंड नाउअडेज यू जस्ट नीड टू क्लिक इट ऑन यूट्यूब. इवन नहीं भी आपको पढ़ना, आप यूट्यूब पे क्लिक करो, सब कुछ मिल जाए. अभी आजकल रिसेंटली आदेश श्रीवास्तव नाम करके एक बंदा है जो यूट्यूब पे टॉपिक्स निकालते हैं, एंड ही इज अमेजिंग इनटू इट. And he is amazing into it. And one another thing is books तवा करके एक यूट्यूब पे चैनल आता है, उसमें तो वो आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली चीजें प्लेटर में सर्व करता है. वहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारी मिमिक्री होगी, एंड देन दे यूज टू रिप्रेजेंट देयर वर्क, वेदर दे आर मराठा वॉर्स और मुगल्स और दिल्ली सुल्तान्स और इंडियन रूलर्स. दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग. प्लीज एक बार देखिए. इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, दिस इज तो बहुत इजी. डोंट किल योर टाइम इन वॉचिंग द रील्स ऑन इंस्टा. Now you are left with very small amount of time. Utilize it into a proper way. First of all, prepare yourself to be a teacher. In B.Ed programming, we are teaching you so many things, but I think जो ये self realization होता है, ये आना बहुत ज़रूरी होता है, which is missing into our structure of education also. ये होना बहुत ज़रूरी है. Fine. So I hope I have shaken your mind's soul and body, and it would not go into ruin कि आप यहाँ गेट से बाहर गए, जो हुआ वो यही ऑडिटोरियम में छोड़ दो और निकल गए. It should not be like this, please. Because whatever I am today, I am because of one of my teacher, social science teacher. उनसे तो मैं अफेक्ट बाद में हुई, but before that I had one teacher in my 6th standard. Fine. अनीता मैम, जिनके टच में मैं आज भी हूँ. शी हैज़ बीन रिटायर्ड नाउ. वो हमें अपने फ्री पीरियड में भी पढ़ाती साइंस थी, लेकिन मैथ्स की भी क्वेरीज वो सॉल्व कर देती थी. उनका डिवोशन देख के देन आई गॉट टू नो कि अरे यार टीचर ऐसी होती है, खुद का सब्जेक्ट नहीं है फिर भी अपने फ्री पीरियड में हमें वो पढ़ाती है. स्कूल के कॉर्नर में हमसे एक वो बनवाया था गार्डन छोटा सा. हमें बोला था ना कि you all are also having some responsibility towards the environment. We are giving so much of carbon dioxide to the atmosphere, so we should also do it ना. It is your bit. आप सोचो 6th का बच्चा कितना मुश्किल होता होगा उसको ये सब चीज़ें समझाना, बट उन्होंने ना हमें समझाया और हमने वो किया. And she took one promise from us कि बेटा on every of your birthdays you should plant at least one tree and you should take care of it. चीज़ें समझा दी, आ गई हमने की. अब मैं कितने बच्चों को आगे समझाती हूँ चीज़. मेरी सिर्फ एक टीचर ने एक बार मुझे वो जो चीज़ समझाई, एंड आई थिंक कितने साल हो चुके होंगे, 30-35 साल हो चुके होंगे इन बातों, 30 years तो आराम से, बट आई एम स्टिल फॉलोइंग इट. सो द टैलेंट इज नॉट इन मी एज अ स्टूडेंट, द टैलेंट वाज देयर एज अ टीचर इन टू वन. कि उन्होंने कैसे समझाया वो कि 6th क्लास के बच्चे को ये चीज़ समझ आ गई. Isn't it? For God's sake, अनीता मैम जैसे टीचर बनना है, ठीक है, सो दैट कि इन योर लेट ईयर्स भी आपको वो टीचर याद है. यू हैव टू बी अ टीचर लाइक दिस. टाइम टेबल, एकेडमिक ईयर, जो कैलेंडर होते हैं ये इस तरह से सेट करते हैं कि बच्चे ना अलग ही बन के निकले उस साल. ठीक है. नेचुरली द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क. ठीक है, ये दिमाग में रख के चलना. अच्छा काम करोगे तो ज़्यादा काम मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात होती है, वो ऊपर वाले के हाथ में. नेचुरल सी बात है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले के हाथ में. तो ज़रूरी नहीं होता आपको मॉनेटरी सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. ज़रूरी नहीं आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिले, बट आपके बच्चे बहुत अच्छे निकल गए पढ़ाई में, आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, हस्बैंड बहुत लगेंगे, हो गया सभी. सब चीज़ पैसे से क्यों नापनी है? Isn't it? So work great. Be great teachers. Maybe I would not be remembered your names or your faces, but in future कहीं मिलोगे तो ये याद रहेगा, हाँ यार ये मैडम थी, इन्होंने 1 घंटा बोर नहीं किया था, इन्होंने कुछ बताया था. तो this is the biggest reward for me. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thanks a lot for today's enriching session. I would like to thank on behalf of Vahist family, from our students,
from everyone. It was very pleasure for all of us to listen to you, and more importantly, the real experiences she had given to us. More importantly, we have not been in touch reality. Right now we are in presently college, so she has just shaken our mind. More importantly, so that we can prepare us to be really fitted into that particular environment. So I wish all of you to follow her points, and more importantly, जैसे उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे छोड़ के ना जाए, वो बातें अपने साथ कैरी करके बाहर लेकर जाए और थोड़ा सा उस पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. राइट, मैं भी सोचूंगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you.